ठीक है ना हूँ ठीक है मैं आगे ओके यार एजुकेशन उनका तो हम वो देखते हैं उन्हें क्यों देखना नहीं ये बात तो दिखाऊं देते बात है कि वो बातें करते उस सब ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 31 ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਸਮ ਇੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਕਰਦੇ 7 बजे पहले रिटायर हो गए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। अदर देखो इस कैमरे से नहीं करो करो कोई नहीं सर देखिए कैमरे एक्सक्यूज मी सर आ जाओ हाँ जी मैम सामने मैम एस कैमरे ठीक है बढ़िया है एक दूसरे के सर इधर कैमरे देखो सर आओ सुमित सर इधर कैमरे इधर कैमरे ठीक है किसी जगन्नाथ जी ने आना जरा थोड़ा सा भी वेलकम किया जाए रिटायरमेंट का दिन है। मैं तीसरी पार्टी अटेंड कर रहा हूँ। 2 जगह मैं जा नहीं सका। नूर महल में खेल चौक पे उन्होंने परंपरा पता नहीं आप लोगों ने की है कि जिसके भी हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे गले में वरमाला डाली। बहुत बहुत बधाई। देखो सर ऐसे कैमरे ठीक है ठीक है सर थोड़ा विशाल आया ठीक है जी हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं GTVN में आया होता है यहाँ ब्रांच के सामने है ना इवेंट में चल रहा फंक्शन तो इधर सामने है लेकिन जो ठीक है एप्लीकेशन वाले हैं नहीं मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैं तो यहाँ अकेला ही हूँ। अंदर से आ गया मैम एस कैमरे ठीक है सर सामने देखिए कि शायद इनकी रिटायरमेंट में मैं हार पहना नहीं तो रतन लाल जी की और जगन्नाथ जी की फोटो देखिए तो कोई कहेगा शायद मैं रिटायर हूँ या
हाँ जी सर, सामने लिखिए। ठीक है जी। रीजन के पास है रीजन में। ठीक है जी। हाँ मगर लास्ट में 1 मिनट अंदर ही आ। मैडम हाँ जी मैडम राम जी। हाँ जी सामने देखो मैम, सामने। ठीक है जी, सामने देखो सर, सामने ताड़ी गया सेवा करते हैं। सर सामने बैंक से आई है ना, किसी दूसरे बैंक से आई है ना? कोई चाहता तो आ सकता अपने घर जान करने ड्यू वास्ते ही आज। ये आ जाए। नहीं हाँ लगे रहो, नहीं लगे रहो उसमें देख सकते देखिए जी। यार एफडी हमारी है, पे हो चुकी है, पे करके कासा में सेविंग में डाल दो, ठीक है? ठीक है। रामलाल जी ने कुछ घर नहीं करो। हाँ जी सर। हाँ जी एजेंट साहब नाम है पर मैं सर एक मुलाजिम आप अब ਭਜਨ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਏਜੰਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਿਜਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ। उनको भेज दो। जी सर देखिए थोड़े ठीक है। मैंने दिया रखिए। वेट करिए। ठीक ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। हाँ जी सर देखिए इधर। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕਰ ਦੇ ਕਰਾਂ। पा दो। हाँ जी दिस सामने देखिए जी नाल। ਕਿਉਂ ਬੜਿਆ ਬਈ? हाँ जी ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੜਿਆ? मैम एक हाँ जी देखिए सामने देखिए सर। ठीक है। जी सर नाल दी ठीक है। अच्छी दिन क्लोजिंग डे ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਪੀਡ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਨੇਸਾ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਰਾਮਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਕਲੀਗਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਏ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਔਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦੀ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। 30 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ। ਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਾਲ ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਂਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ परमात्मा अगे दुआ करते हैं कि इन्हों की रिटायरमेंट की लाइफ जी है बहुत अच्छी गुजरे और इन्हों की सेहत बहुत अच्छी रहे। उस तो बाद रतन लाल जी 1977 साडा बैंक ज्वाइन किया सी ते 77 तो इन्होंने उस तो बाद जलंधर आए। जलंधर उदों के जलंधर ही टिके हुए ने, इन्होंने प्रमोशन नहीं ली क्योंकि इन्हों की फैमिली के कारण करके कुछ ये बाहर नहीं जाना चाहते थे। इन्होंने ज़्यादातर कैश के विच ही काम किया है और बहुत वधिया काम किया है, बहुत वधिया सर्विस दी है। इन्होंने जोड़े भी कस्टमर आते सी बड़े खुश होकर जाते सी इन्हों कोलों और इन्हों के बच्चे भी वैल सैटल्ड ने। परमात्मा अगे दुआ करते हैं कि इन्हों की रिटायरमेंट लाइफ भी बहुत वधिया रहे कि इन्हों जिंदगी के विच हर सुख मिले। थैंक यू। रतन लाल जी, रामलाल जी, जगन्नाथ जी, आपको अभी ज्वाइनिंग के सीक्वेंस के हिसाब से एड्रेस कर रहा हूँ। 77, 83, 85 आप सबके परिवार, मेरे बैंक के साथियों, बड़ी खुशी का दिन होता है किसी की भी ज़िंदगी में जो रिटायरमेंट का दिन। इतने साल आप एक इंस्टीट्यूशन की सेवा करते हो, जिस दिन ज्वाइन करते हैं उसी दिन एक तारीख मुकर्रर होती है कि फलानी तारीख को हम रिटायर हो। लेकिन एक जो सफ़र होता है उस सफ़र में हमेशा कुछ यादें जुड़ी रहती हैं जिनको आदमी हमें ज़िंदगी के आखिरी क्षण तक याद रखता है कि इस डेट को बैंक ज्वाइन किया था, इस डेट को इंक्रीमेंट मिला था, या इस डेट को ट्रांसफ़र हुई थी, या इस डेट को थोड़ा सा कोई कड़वा अनुभव हुआ था। वो अनुभव एक हमेशा की यात्रा की याद की तरह साथ साथ चलता है। और आज का तो दिन ही जैसे सुना था ना, शादियों का सीजन होता है, तो आज तो रिटायरमेंट का सीजन होता है। जब अवतार सिंह जी रिटायर हुए तो मैंने अशोक जी से शिकायत की थी, डीजीएम साहब भी आए थे कि आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। तो बुलाने का मतलब ये होता है कि हम भी शरीक होना चाहते हैं कि हमारा एक कुलीग रिटायर हो रहा है, वो 30-35 साल 40 साल नौकरी करता है, उसको पता लगे कि वो अकेला नहीं था, बैंक सभी उसके साथ। जहाँ तक संभव हो सके हर एक की कोशिश रहती है कि रिटायरमेंट का एजीएम हो, डीजीएम हो, कोई ना कोई जाए। 7 जगह तो हमारे यहाँ लोग रिटायर हुए हैं, 5 जगह 7 आदमी या 3 हुए। अभी दसूहा में रिटायर हुए हैं, डीजीएम साहब दसूहा में गए हुए हैं। अगर डीजीएम साहब दसूहा नहीं गए हुए थे तो वो भी इस प्रोग्राम में जरूर आते, चाहे वो आधे घंटे के लिए आते। और सरदार जी चाहे हंसी में कह रहे थे, ये आपके ब्रदर ने कहा कि अब बैंक का मुँह मत देखना, देखिए जहाँ से हम रिजक कमाते हैं, वो एक हंसी की बात थी, मैं भी समझता हूँ। हम तो कहते हैं कि जब तक रहे इस बैंक का मुंह हमेशा देखना। इस बैंक ने हमें नॉरिश किया है, हमें पाला पोसा है, समाज में हमें एक इज्जत दिलवाई है, हमारे परिवार को इस लायक बनाया है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ सकें, अच्छा सेटल हो सकें। और बैंक भी हमेशा आपके कंट्रीब्यूशन को याद रखेगा। हम सब ने कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा किया होता है कि जिसकी वजह से आज बैंक कायम है। बैंक कोई दीवारों का या फर्नीचर का नाम नहीं है, बैंक उसके एम्प्लॉयज़ से है। और आप यकीन मानिए कि धीरे धीरे जो एक ट्रांजिशन आई ना बैंक की, इन सब की बैंक में जो पिछले 10, 12, 15 साल में परिवर्तन आया, और तब हम सब लोग वही 40, 45, 50 की एज के होंगे। चेंज करना एकदम एनवायरनमेंट के मुताबिक, सर्कमस्टांसेस के मुताबिक अडाप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। 2 बजे तक के बड़े कंफर्टेबल दिन होते थे। लाल जी कैश गिना की ज्वाइनिंग है और मैंने 28 नवंबर 83 को ज्वाइन किया, यमुनानगर से मैं बिलोंग करता हूँ।
और वो पास ही एक कस्बा है 15-20 किलोमीटर पे, छिछरौली, हिमाचल की तरफ जाते हुए। तो एट 4:30 आई वाज एट होम। बैंक का टाइम 5 बजे तक होता था। माय फादर सिंपली आस्क्ड मी, अरे 5 बजे तक का टाइम ही होता है और तो आ ही गया, 4:30 बजे घर पहुँच गया, ये कैसे? मेरी उम्र 20 साल। फर्स्ट टाइम पे मैंने बैंक क्लरिकल में ज्वाइन किया, हो गया 2 साल वहीं रहे। प्रमोशन की इच्छा भी नहीं, पर जैसे जैसे लोगों को देखा तो प्रमोशन की भी इच्छा। तो कैसे आगे मैंने कहा ऐसा है कि वो सब लोग ना निकल रहे थे बाहर 3 बजे, बैंक बंद कर रहे थे। उन्होंने एक धक्का से मुझे भी मारा, मैसेज छोड़ा कि चल तू भी चल, मैं भी आ गया। लेकिन उस हालात से धीरे धीरे गुजर के तो 4 बजे तक की ड्यूटी होता है और शायद आप तो बैंक के दरवाजे कभी बंद ही नहीं। अभी भी अशोक भाई ने एग्री किया, वो 20 लाख रुपए जमा करवाने को तैयार हुआ और उस पर बैंकर की डेट में जमा हो, डूबे हुए खाते चुपके रहते तो पता भी नहीं लगता, किसी मरे हुए होते हैं, कौन जानता होगा आपको इतना कितना बुरे दोगे इसको। और उसके बारे में डिटेक्टिव एजेंसी को बैंक ने केस दिया था, उसने ये लिख दिया था कि ये आदमी नदारद है, पता ही नहीं है, इसको ढूंढा ही नहीं जा सकता। उसकी सैंक्शन, क्योंकि वो कैसा कॉम्प्लिकेटेड केस था जिसको हेड ऑफिस ही दे सकता था, जिसमें चीफ जनरल मैनेजर 2 होते हैं। तो 2 बजे हमारे डीजीएम साहब को बोल दिया कि किसी भी टाइम आपका मीटिंग में नंबर आ सकता है, तो आप तैयार रहिए। और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए टीवी से आजकल ऐसे जोड़ के होता है, प्रोमोट इंडिया बैंक की जो मीटिंग्स होती हैं, हम फिजिकली नहीं जाते, उस कमरे में बैठ के मीटिंग करते हैं जहाँ पे। तो 2 बजे से वो बैठे, खाना वो खा नहीं सकते, उठ नहीं सकते, क्योंकि 1 मिनट पहले आ जाता है कि अब आप जलंधर इज ऑन, अब जलंधर जुड़ गया, वो चंडीगढ़ नहीं है, अब जयपुर नहीं है, बॉम्बे नहीं है, दिल्ली नहीं, अब जलंधर बात करें। ना तो वो उठ के खाना खा सके और ना ही जो है ना वो मतलब उसको कह सके कि मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ। ना प्यार रहा तो आप आओगे तो ही फंक्शन शुरू होगा। तो 3 बजे शुरू होने वाला फंक्शन 4 बजे शुरू हुआ, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की कि वो 10 लाख रुपए जमा करवाया और ऊपर से उसकी सैंक्शन हुई। उधर सैंक्शन हुई, उधर 10 लाख रुपए जमा हुआ, इसलिए पॉकेट में नहीं जा रहा, वो हमारे बैंक के खाते में जा रहा है और वो बैंक की स्थिति को ही मजबूत करता है। जो लोग बैंक में काम करते हैं, अब आप लोग लेडीज इनके फैमिली से हैं, आप एक तरह से बहुत लकी हैं। जलंधर को कभी छोड़ा नहीं, चाहे आप फगवाड़ा से हो जगन्नाथ जी, फगवाड़ा जलंधर का हिस्सा ही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि बाबा नानक ने भी कहा था कि उजड़े रहो या बसे रहो, बड़े पुराना हर कोई जानता है कि कौन उजड़े रहो और कौन बसे रहो। जो उजड़े रहते हैं वो हर जगह कल्चर फैलाते हैं। आप लोग एक चीज़ को कभी इंजॉय नहीं कर सकते जो बैठ के आए लेडीज, जो मैं हिंदुस्तान के शहरों में देख के आया हूँ कि आप एक घूम लीजिए, अगर आपको कोई उंगली भी लगा जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता। क्या जलंधर में संभव है? बिल्कुल। हर औरत अपने पति से जब भी कभी फरमाइश करती है तो वो साड़ी, सूट या ज्वेलरी की होती है ना रतनलाल जी, है ना? आपकी रिटायरमेंट में भी शायद भाभी जी कह रहे हैं बात। अपने परिवार को, जब मेरी जलंधर पोस्टिंग हुई है तो मैंने अपने परिवार, बड़े सालों के बाद मेरी बीवी मेरे साथ जलंधर रही है। नहीं तो क्या हुआ, जनरली बीच में जब यमुनानगर चले गए तो साथ रह लिए, अभी जोधपुर चले गए तो महीने बाद आ जाते थे और कहीं और थे तो सप्ताह बाद आ जाते थे, ऐसे करके चलता था। लेकिन जो इनका कपड़ों को डालने का गुजरात में या राजस्थान में कर सकते हैं, वो पंजाब और नशों का शिकार हुआ है, वो आप नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं कि कल्चर, जैसे मैं जोधपुर में था, किसी शादी में 1000 से कम लोग नहीं होंगे और किसी शादी पे कार्ड पे ये नहीं देखा जाता क्या लिखा है मिस्टर एंड मिसेज। वो एक मारवाड़ी में कहावत है, मेरे को कभी कहनी नहीं आई कि यू आर इन्वाइटेड विद ऑल योर गेस्ट। आपके घर में जितने मेहमान भी आए हैं, 10-20 सब शाम आइए, और माँ को पूछता ही नहीं है। हालांकि मेरे दिल में रहता है कि मैं शादी में जाना चाहता हूँ। रामलाल जी ने मुझे अपने बेटों की शादी का कार्ड दिया, इंसिडेंटली मैं उससे ना नहीं सका, लेकिन मेरे दिमाग में रहा। मैंने अपने ड्राइवर को बोला, लेकिन कोई प्रोग्राम ऐसा निकला मैं अटेंड नहीं कर सका। तो कोशिश रहती है कि अटेंड किया जाए, क्योंकि ये यादें सारी ज़िंदगी साथ चलती हैं, याद रहती है। अब आप ये रहे, कम से कम एजीएम साहब तो आए थे, चलो डीजीएम साहब ने आए, आपकी पार्टी, तो ये आप लोगों की तारीफ में एक कसीदा है। आप लोगों ने जो काम किया है, ऐसा नहीं कि उसने बैंक को रिकॉग्नाइज, बैंक ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। कर्म योगी जो मिलता ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अनरिवार्डेड कभी नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि देखिए आप सबके चेहरे पे एक नूर है कि आप सब फैमिली से सेटिस्फाइड हो, सबके बच्चे वेल सेटिस्फाइड। और अगर एक आदमी बढ़िया होता है
तो भी वो बढ़िया बैंकर हो सकता है, तभी वो बढ़िया पिता हो सकता है, तभी वो बढ़िया, क्योंकि एक सिस्टम बना होता है ना कि पानी कब आएगा कब जाएगा पता नहीं है, अखबार किस टाइम आएगा, सब्जी वाला कहाँ से मिलेगा, दूध वाला कहाँ से मिलेगा, और 2 महीने के बाद तो ऐसा लगता है कि हम तो रहते ही यहीं पे। तो जो लोग खासतौर से जैसे सुमित है, बाहर निकलेंगे, सारी ज़िंदगी घूमेंगे, अब जब वो लोगों से मिलते हैं तो बढ़िया लोग, आपकी सोच से ही बढ़िया होता है, इतने बढ़िया होते हैं कि मैं आपको बताऊं, जो आपके व्यक्तित्व को भी निखारने में साथ देते हैं। अभी नव वर्ष था कुछ दिन पहले, मालूम है, विक्रमी संवत 2072। मैं जब जोधपुर रह गया है ना, वहाँ क्लैरिकल में थे, मैं आपको क्लैरिकल की बात बताता हूँ। क्लैरिकल में थे, शायद मैंने जिक्र किया आपके ब्रांच में पहले कभी किया था, श्याम मनोहर। मैंने कहा शाम को मुझे टाइम नहीं मिला, 7 बजे मैंने दिन में मैं लैंडलाइन पे फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन का बिल 3,500-4,000 आता है, बैंक इतना देता नहीं है, 2,000 पॉकेट से देने पड़ते हैं। तो मैंने कहा लेकिन मैं जिसको दिल से कहता है मैंने शाम को बैठ के कंफर्टेबली बात करूँ। तो मैंने श्याम जी को फ़ोन किया, मैं चलो विक्रमी वर्ष 9 वर्ष है 2072, मैं उनको बधाई देता हूँ। वो कहते अरे वर्मा जी आपकी बड़ी लंबी उम्र है, मैं तो आपको, अगर आपका फ़ोन नहीं आता मैं 1 मिनट में फ़ोन करने वाले था। जितने मेरे लोग थे सुबह से बधाई दे रहे थे, मैंने कहा वर्मा जी मुझे मालूम है कि अभी मेरे पास ड्यूल चार्ज भी है, लोन सेल का भी है, रीजन का भी है, दिन कब चढ़ता है रात कब होती है पता नहीं लगता, बट आई एंजॉय ये लाइफ है, जितना काम करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते अभी जो है ना, मैं सोच रहा था कि मैं आपको फ़ोन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पहला फ़ोन अभी थोड़ी देर पहले आया था, वो आप सोच सकते हैं बैंक के किस ऑफिसर का होगा, चीफ जनरल मैनेजर का। बैंक में एमडी के बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है चीफ जनरल मैनेजर की होती है, जहाँ हम भी हमेशा ऐसे ही खड़े रहते हैं। सच बात बता रहे हैं कि एजीएम एक सीजीएम के सामने ऐसे ही खड़ा था। आदेश आदिकेशवन जी का फ़ोन एक क्लर्क के पास आया और कहता उसके बाद चांस की बात देखिए, वो आया स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर। उसके थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, वो आया जनरल मैनेजर से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के, जिसमें से बैंक वाले लोग उनको जानते होंगे, नकीब साहब का, अजय नकीब को लोग जानते हैं। तीसरा फ़ोन उसके बाद आया डिप्टी जनरल मैनेजर का, वो आया स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद से सुयश अस्थाना जी का, हमारे बैंक में। और कहते मैंने कहा यार अब सीजीएम का फ़ोन आ गया, जीएम का फ़ोन आ गया, डीजीएम का फ़ोन आ गया, मेरे एजीएम जो मेरे मोहसिन हो तो वर्मा जी का आए नहीं, मैं करता हूँ इतनी देर मेरे कम से। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि इस बात पे कुछ नहीं होता कि जगन्नाथ जी आप शायद स्केल 1 रिटायर हुए, असिस्टेंट है या 2 रिटायर हुए, ठीक है ना, और आप एडुकेशन रिटायर हुए हैं या सिंगल विंडो ऑपरेटर या स्पेशल असिस्टेंट रिटायर हुए, ये कुछ नहीं होता। ये परिवार जो होता है ना, सब सदस्यों से मिलकर चलता है। बैंक में कोई डेजिग्नेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दफ्तर की जिम्मेदारियाँ हैं। और मैं आपको बताऊँ कि आपको लगता है कि कह रहे थे ना कि कंफर्टेबल रहना, अगर आप मेरी वाइफ से पूछोगे तो मेरे ख्याल 200 तो मेरा टेलीफोन होते हैं, 7 बजे दिन शुरू होता है, 9 बजे तक चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी काम करके मजा आता है। हमने इनका पूरा ख्याल रखा, भगवान के वजह से पूरे तंदुरुस्त है। वेट सर, थोड़ा ना सर, थोड़ी चेयर पीछे करनी, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा मैम उठिए। याद रखना सानू तराज नूं ठीक है, ये मेरी तरफ से और जगन्नाथ जी को डीजीएम साहब की तरफ से होता है, बैंक का एक सिस्टम होता है। माय डियर रतन लाल, ऑन द फेयरवे लीव ऑफ योर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस इन द बैंक, वी प्लेस ऑन रिकॉर्ड the appreciation for services rendered by you to this great institution. You served the bank for 37 years, 6 months, 14 days and contributed a great deal for the development of esteemed organization. We will always cherish memories of your working with us. I, on behalf of the bank and its staff, wish you a happy, healthy and contented retired life. May God shower His choicest blessings on you and members of your family. और बाकी के दो भी ना पढ़ देंगे, कोई ना कोई मन पढ़ जाए, आप पढ़ देना, एक वो लड़की की सर सामने देखिए। हेलो
मैम स्कैन टाइम नहीं है। ठीक ठीक है सर एस कैमरे देखिए सर जी सर सामने देखिए ठीक है सर ये रीजन साहब की तरफ से Your retirement from the service in the bank. We place on record appreciation for services rendered by you to this great institution. You served the bank for 29 years, 5 months, 16 days and contributed a great deal for the development of esteemed organization. We always cherished memories of your working with us. I, on behalf of my bank and its staff, wish you a happy, healthy and contented retired life. May God shower His choicest blessings on you and a member of your families. मैम थोड़ा नाम अंकल है अंकल ठीक है ठीक है हाँ जी वेट करिए सर वीडियो कर लेना कट वेट करिए सर चलिए ठीक है सर सर सामने देखिए सर एस कैन भाई हाँ जी सर इधर देखिए कैमरे उधर उधर चलो ठीक है हाँ जी मैम स्कैन ठीक है हाँ जी ठीक है सर मैम थोड़ा Service in this bank. My dear Ramlal sir, we place on record the appreciation for services rendered by you to this great institution. You served the bank for 21 years, 6 months, 26 days, and contributed a great deal for the development of this esteemed organization. We will always cherish memories of you working with us. I, on behalf of the bank and its staff, wish you a happy, healthy, and contented retired life. May God shower its choicest blessings on you and the family, the members of your family. Good. थोड़ा नाम हाँ जी सर थोड़ा नाम थोड़ा हाँ जी मैम
मैम गैप कल कोई हल्की चीज देनी। हाँ जी देखिए सारे सामने। मैम इस ठीक है सर देखिए सामने। ठीक है सर इस कैमरे देखना सर। ठीक है बहुत ही सारे छोटे ब्रदर करना की मैं ना छोटे कहता था कोई आज रिटायर हो गए छोटे वीर रतनलाल जी मैं अज का इन्होंने बहुत बड़ा वधिया सुभाग्या कह सकता कि एक उस इंस्टीट्यूट ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੈਟ ਸੰਭਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ऐसी कोई गल नहीं है ये असीं इंश्योर करते हैं क्योंकि साडे लई जिहड़ा इंस्टीट्यूट है ये एक छोटी गल नहीं है इंस्टीट्यूट ने ही सानू नाम दिता इंस्टीट्यूट ने इन्हां दी वाइफ नूं नाम दिता इस इंस्टीट्यूट ने इन्हां दे बच्चों नूं जेकर साडे बच्चे है वो ड्यू टू इंस्टीट्यूट है क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ क्योंकि सानू इन्ना मान दिता साढ़े सारे परिवार में मेरे फादर बेटे 96 ईयर ओल्ड है तो थोड़ी जी प्रॉब्लम साड़ी मदर में आई है मदर भी साढ़े है लेकिन वो थोड़े बीमार चल रहा है तो मैं तो वो छोटे ब्रदर को कह रहा थी मैं यार मदर ढिले थोड़ा कुछ छुट्टी कर रहा है ये कह रहे थे एजेंट साहब है कह रहा है भी भाई तू जिन्ने दिन अगे मतलब की सर्विस की थोड़े दिन होर कोई गल नहीं आ जा छुट्टी ना ले इस करके जी साहब ऐसी कोई गल नहीं अभी बड़े मतलब सारे मैं भी 34 ईयर सर्विस की है आई एम रिटायर्ड एज ए मैनेजर फ्रॉम सेजवर पटियाला मुगनपुर तो बहुत ही मान के नाल मतलब इस तरह मतलब जिस तरह तुम अज बड़े मान मतलब सानू इन्होंने विदा कर रहे हैं तो बहुत ही मान मतलब बैंक ने सानू दिता परिवार में बहुत दिता सारे बच्चे वैल सैटल्ड है इन्हों भी मेरे भी सारा परिवार सारा वैल सैटल्ड है इस करके मैं फिर थोड़ा सारे का मैनेजर साहब का एजीएम साहब का साथ स्टाफ का क्योंकि स्टाफ वालों बहुत बड़ा मान होंगे है तो एक विधायकी पार्टी के सारे स्टाफ ने मतलब रल के सन्मान देना ये एक बहुत बड़ा मान है इस करके थैंक यू एक मैं बेनती करनी चाहना कि असी थोड़ा जहा एक पार्टी रखी हुई है रिटायरमेंट का मैं एक बेनती करनी चाहना कि थोड़ा समा तुम सारे कढ़ सको साढ़े जरूर शामिल होवो तो ये चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे कि ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਬੋਲ ਵੀ ਲਈਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ मेरे नाल आए हुए मेहमान मैं 85 ਵਿੱਚ बैंक की रोड को वाड़ा ब्रांच ज्वाइन किया
तकरीबन 25 साल उत्थे जॉब करने तो बाद 1/9/2010 में प्रमोशन लैके 3 साल 3.5 साल के करीब लुधियाना घुमार मंडी ब्रांच लाई। बेरका मिल्क प्लांट से मैं एक्सटेंशन काउंटर का मैनेजर सीगा। तो उस तो बाद मेरी ट्रांसफर माल्टन ब्रांच की हो गई। माल्टन ब्रांच ओमकार सिंह जी मेरे रिश्तेदार है, इस करके मैंने इत्थे ट्रांसफर किया गया। तो क्योंकि मैं ज्वाइनिंग टाइम वेले लिख के देता था बैंक में कि मेरे नीयर रिलेटिव है, इस करके भी कल कोई प्रॉब्लम ना आए तो फिर बैंक ने मैंने GD इस ब्रांच मैंने बड़ा घर वर्गा ही माहौल लग्या। सारे स्टाफ नाल बड़ा कोऑपरेशन रही है। मैं अपने वालों कोई किसी काम प्रति किसी ने उच्चा नीवा क्या हो तो उसके लिए मैं फैमिली मैंबर्स ठीक है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। एटी 2008 ਚ ਮੈਂ GTBN ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 185 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਔਰ ਇਹ ਸਟਾਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਗੁਣਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 2008 ਚ ਚਲੇ ਇੰਦਾ GT ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਆ ਵੀ 3 ਜਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ। ਤੇ मनेज साहब कई बार हादसे ना आप गल करते पे भी पहली तरीक तो आप हेलमेट पा के बैठे। खावड़ा जी एक बात मैं 6 ब्रांचेज में मैनेजर रहा हूँ, कभी दिन एक जैसे नहीं रहते। आप निश्चिंत रहिए, स्टाफ आएगा, थोड़ा गैप लग सकता है। जैसे घर में भी वो सास बहू आए हैं या 2 बहनें भी आई हों, कभी एक बार गेस्ट भी आ जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन आपकी बात की वजह से मैं आपको बताऊं, जब मैं रात को कई बार इम्पोर्टेंट चीज़ सोचता हूँ ना तो उसमें मुझे GTBN के स्टाफ का ख्याल आता है। इवन DGM साहब भी ये बात कह रहे थे कि यार वो ब्रांच कैसे चलेगी। अभी क्या हुआ, मेरे आने के बाद 30 आदमी रिटायर हो गए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थापा जी का फ़ोन आया, थापा जी मेरे कंट्रोलर रहे, जो सपोर्ट प्रोवाइड होगी। लेकिन ये आप महीने से ज़्यादा की बात नहीं है, मैं आपको निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा एक मेरी गुजारिश हुआ, जो लोग रिटायर्ड हुए अपन इतने सारे किया 10-15 दिन वॉलंटरली इसको और में भी हम कर रहे हैं। इन बिटवीन कोई ना कोई सपोर्ट मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। सच बात तो ये है कि कई बार सोचते हैं ना कि यार वो GTBN में बंदा भेजो, मेरे को ये तो बंदा भेजेंगे कौन सा यार, कहाँ से भेजेंगे। आपको एक बार बताऊँ कि 4 ब्रांचेज हमारी बिना मैनेजर के चल रही हैं। रीजन के बारे में कोई जानता हो, लेकिन ऐसा है कि आएगा स्टाफ, ऐसा नहीं आएगा। रिक्रूटमेंट भी हो रही है, पुराने में से भी आ रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। छावड़ा जी हिम्मत रखिए, जरूरत पड़ी ना, अगर कभी 100-200 बचत पड़े मुझे बुला लेना, शाम को मैं पोस्ट कर दूँ। अच्छा नहीं है, और कुछ ना कुछ उसका हल जल्दी ही निकालता हूँ। इन बिटवीन मैंने कभी ये नहीं कहा अपने स्टाफ में, आपने कभी की वजह से हो सकता है ऐसा, लेकिन आप निश्चिंत करो, बंदा आएगा। रीजन वालों को भी ऐसा है कि मैच की AGM साहब का स्पेशली बहुत धन्यवाद।